So where the formula of the both law of Faraday combines to find an equation, and the equation is n equals to I into T by valency factor into 96500 coulomb. So that is the mole part. Okay. So what is to be asked that একটা অঙ্ক দিয়ে শুরু করছি that 96.5 ampere electricity is supplied to aqueous copper solution. একটা অঙ্ক আমি করে দিচ্ছি আর তোমাদের দুটো অঙ্ক করতে দেবো, হ্যাঁ? Aqueous copper sulfate solution of 1 molar for 200 seconds. For 200 seconds. Find out find out the amount of discharge at cathode and anode, and also find out the amount of acid or base at the solution. So in the copper sulfate electrolysis, we have already know that at cathode copper will deposit. So what is the mole? That is simple formula I into T by valency factor into 96500. So I is given 96.5 ampere, time is 200 second, valency factor is 2 electron into 96500. So it will become 1 by 10 mole. So 1 by 10 mole means 1 by 10 into the atomic weight of copper, that is 6.35 gram. So it is the cathode portion. For anode, for anode, we know that between sulfate and hydroxide ion, the selective discharge potential is more for the water. You know, that means hydroxide. So from water we will get oxygen, 4 electron and 4H plus. So here valence vector is 4. So n equals to similarly I into T by valency factor into 96500. This is the current, this is the time, this is the valency factor, and it is Farad. So here it is found that 1 by 20 mole. So as it is a gas, oxygen is a gas. So volume of oxygen produced, that is 1 by 20 into 22.4 liter. That is just 1.12 liter. Okay. So the remaining part of the solution at a product at solution is just H plus and sulfate. That means it produces sulfuric acid whose N factor is 2. So the amount is similarly 1 by 10 mole হবে কারণ এখানেও N factor 2 ছিল. So 1 by 10 mole means 1 by 10 into 98 gram, that is 9.8 gram of sulfuric acid. এখন আবার ক্লিয়ার? কারো কোনো জায়গায় ডাউট হলে বলো.
সৌম, অগ্নিব, অয়নজিৎ, সৌনক, শ্রীশান্ত, অঙ্কুশ। কোনো ডাউট হলে বল। আমি তো আমাকে অঙ্ক দেবো এবার তাহলে। ঠিক আছে, এটা অঙ্ক তাহলে করো। আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? চলো, তাহলে একটা অঙ্ক দিচ্ছি, অঙ্কটা একটু ট্রাই করো। ইজি অঙ্কই দিচ্ছি। তো বলছে, হুম, এই টাইপের একটা অঙ্ক, এই টাইপের অঙ্কগুলো আইএসসি তে আসে। তো তাই এটা টাইপ কোশ্চেন নাম্বার 3, নিউমেরিক্যাল 3। বলছে হাউ মাচ টাইম, তো অর্চক দেখো, আমরা আগের দিনের যে ফর্মুলাটা করেছিলাম ফ্যারাডেস ল, সেখান থেকে আমরা অঙ্ক করছি। সেই অঙ্কটার একটা অঙ্ক আমি দেখিয়েছি, তো আরেকটা অঙ্ক তোমাদের করতে দিচ্ছি, একটু ট্রাই করো। তো কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম: হাউ মাচ টাইম উড বি নিডেড, হাউ মাচ টাইম উড বি নিডেড টু ডিপোজিট 0.25 gram of metallic nickel, whose atomic mass is around 58. Atomic mass of nickel is around 58.5. So 58.5 gram is the atomic mass of nickel uh, on a metal object. On a metal object using a current of 1 ampere. Using a current of 1 ampere. একদম easy question. During electroplating. During electroplating. So we know that the formula is just, তোমরাই করবে, তাড়াতাড়ি করে ফেলো হাতের সামনে খাতা থাকলে। I into T by valency factor into 96500 is the formula. Okay, just go for it. Here N is the mole, I is the electricity, T is the time in second, Vf is the valency factor, and 96500 is the farad. तो निकेल डिपॉजिट होगा, तो व्हाट इज द টাইম রিকোয়ার্ড? ফটাফট করে ফেলো, 2 মিনিট টাইম দিচ্ছি, আমি আরেকটা অঙ্ক ততক্ষণ লিখে ফেলছি। অ্যান্সার একদম ফাইনাল, একদম। ইট ইজ 824.8 সেকেন্ড, দ্যাটস কারেক্ট। বাকিরা করো। ইট ইজ জাস্ট, তো ঠিক আছে। কারোর কোনো জায়গায় ডাউট হলে বলো। অর্চক, আরিয়ামান, if you have any doubt, so you can ask me regarding the problem, if you face any problem.
নেক্সটটাও ট্রাই করো, আমি ততক্ষণে উপরেরটা করে दिच्छी। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था द हाउ मच टाइम वुड बी नीडेड टू डिपॉजिट 0.25 ग्राम ऑफ। हाँ बोलो। बोलो। हाँ हाँ हाँ, 10 मिनट टाइम इज द 10 मिनट्स। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, एकदम সহজ। ঠিক আছে, বেসিক এই ফর্মুলাটা হচ্ছে কতটা, 63.5 অ্যাটমিক মাস, 63.5। देखो बाकी हुआ, आर्यमन हुआ, और चोक, और चोक। हाँ चलो करो, और चोक करो करो ट्राई करो, एकदम সহজ। It's a mole. N is a mole. Mole means given weight by atomic weight or molecular weight. So, what is the given weight of nickel here? So, nickel is just deposited as Ni from nickel salt. So, here valency factor is 2. নিচেরটা, নিচেরটা হ্যাঁ ওটা ইজ দ্য মাস বলেছে। সো হ্যাঁ 0.29, that is equals to 0.3 gram. So here mole means given weight, that is 0.25. Atomic weight is 63, sorry 58.5. I is the ampere. Here mentioned ampere is 1 ampere and time is the second. So T will be 0.25 into 2 into 96500 divided by 58.5. Okay. So এটা calculate করলে as per the answer key is concerned, that is 8824.8 second. Okay. For the second question, what mass is deposited? Similarly, you can find out N, that is also I into T by valency factor into 96500। देखो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि बुक में हो सकता है यूनिटरी मेथड में कर रहा है, नहीं तो दूसरा कुछ फॉर्मूला यूज कर रहा है। क्योंकि अगर तुम कोई भी फॉर्मूला में मोल में कन्वर्ट कर दो तो इट इज बी इजियर टू कन्वर्ट इट द मास, वॉल्यूम, या मैंने एनीवेयर। So here it is to be asked that what mass. So if I calculate in the terms of mole, that will be easy. So I will be 1.5 times say 10 minutes. That means 10 into 60 second. So copper is deposited, matlab copper is converted to Cu. So valency factor is 2. So 96500. So if you calculate it, so for 9 by 2 into 965. So that is the mole. So if you multiply with the atomic weight, 9 into 63.5 by 2 into 965, so the answer will be close to zero point 0.3 or 0.29 gram. Clear? So in this type of question, just electrolysis related. So they will be asked for the amount deposited, the time required, or the amount of current, etc. So if you uh, know the formula, so it will be very easier. But this type of question here, just one problem arises for the few typical problems. Like if it is asked that what will be the valency factor, what will be the valency factor for conversion of this to this.
benzoquinol to benzoquinone. So what will be the conversion? What will be the valency factor or N factor? It is asked. So what we have to do that, what is the atom balance? So देखो, at your left there will be two hydrogens there, but at your right there will be no hydrogen. So there must be hydrogen is releasing in terms of 2H plus, and as it is the neutral species, so there must be two electron to neutralize this H plus ion. So the valency factor is 2. Okay. सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी, जैसे फ्रॉम एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन, सपोज NH2 टू नाइट्रोबेंजीन, what will be the valency factor? So NH2 to nitrobenzene, here two water will be required. So देखो टोटल हाइड्रोजन तो 6 है यहाँ पर, तो 6H प्लस होगा, और इसको बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब तुम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. देखो, फॉर ईच ऑफ द ऑक्सीजन देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड. सो फॉर दो ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लगेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन के रिमूव करने से ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो फॉर ईच हाइड्रोजन के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा. तो टोटल दो ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन. सो फॉर दिस केस इन फैक्टर विल बी 6. तो ये टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूँ. तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, ऐसा टाइप क्वेश्चन, दैट हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग कन्वर्शन. हाउ मच चार्ज, ये आता ही है, बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है ये. ISC में ऑब्जेक्टिव टाइप में चला आता है. हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन, फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन. सो कैसे कैसे, जैसे ए बोला है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम, बी बोला है 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn2 प्लस. ऐसा क्वेश्चन. तो हम लोग कैसे करेंगे ये सब क्वेश्चन? देखो इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला मुझे जानना पड़ेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चार्ज? सो हियर द फॉर्मूला इज चार्ज इक्वल्स टू number of moles into electron transfer, or charge transfer you can say, into farad. So this is the simple formula. So देखो इन फास्ट केस क्या हुआ है, फास्ट केस में Al3+ से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर एल्यूमिनियम डिपोजिट हो रहा है. मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 3 होगा, मोल तो 1 ही बोल दिया गया है, इंटू F. सो आंसर होगा 3. बहुत इजी. सेकेंड केस में MnO4 माइनस से Mn2 प्लस. तो MnO4 माइनस में मैंगनीज का चार्ज कितना है? +7, और इसमें मैंगनीज का चार्ज कितना है? +2. तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो मतलब इस केस में इन फैक्टर है 5. तो इसका चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? सिमिलर फॉर्मूला, मोल इंटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंटू फैराड, दैट मीन्स 5 फैराड. देखो क्लियर हुआ? शोनो. सो ऐसा क्वेश्चन पूछता है. हाँ, तो चिकी वाला क्वेश्चन में दिखा दिया ऊपर जो बोल पूछा था, जैसे ऐसे एनिलीन का ऑक्सीडेशन करने के लिए, और नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करने के लिए, बेंजोक्विनोल को ऑक्सीडेशन करने के लिए,
तो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द इन फैक्टर, ठीक है। इन जनरल नीचे वाला पोर्शन का क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है। ओके, सो अब तक जो मैं किया वो हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का द मेजर 80% पार्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइसिस। द रिमेनिंग पोर्शन yes I am starting to discuss, that is the conductivity or conductance. Up to this point if you have any doubt you can ask me, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम लोग इस चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट लेंगे, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिविटी जनरल ये ऐसा एक टॉपिक है जो फिजिक्स में भी तुम लोग पढ़े हो। तो कंडक्टिविटी किस किस का हो सकता है, एक फिजिक्स में जो है वो मेटालिक वायर का हो सकता है, मेटालिक वायर। और मेटालिक वायर में कंडक्टिविटी का रीजनिंग फैक्टर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और केमिस्ट्री में इसका एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसका ड्राइविंग फोर्स और जो इसमें पार्ट ले रहा है वो है फ्री आयंस। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री आयंस। तो कंडक्टिविटी को फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे सपोज इट इज एन वायर whose length is L and cross sectional area, that is A. So from Ohm's law, R equals to rho L by A, and this 1 by rho is equals to called kappa। kappa ऐसे लिखते हैं k को k जैसा, k equals to 1 by R into L by A। ये जो काप्पा है इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये तो हुआ फिजिक्स के एस्पेक्ट्स, वायर के एस्पेक्ट्स। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस के एस्पेक्ट्स पे कैसे होगा, सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड का बीच डिस्टेंस है L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A यूनिट स्क्वायर। ओके, बाहर में ये जो पावर से अटैच है ये AC सोर्स होगा, नॉट बैटरी, AC सोर्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो L है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। सो दिस L by A इज ऑल्सो कॉल्ड सेल कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी एक सेल के लिए ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ व्हाट इज दिस। So it can be defined as the conductance generated by the ions present in 1 centimeter cube volume, in 1 centimeter cube volume। समझो इसका मतलब क्या है। सपोज इसका स्क्वायर एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता और इसका लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर होता, तो पूरा जो वॉल्यूम है इसके अंदर, ये जो पोर्शन का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना हो जाता, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो होता। तो उससे कैलकुलेट करके हम लोग उस जगह में कितना आयन से कितना कंडक्टेंस जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज ये एक ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस सेल है जिसमें तुमको बोला गया है एक पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस में दिया गया है, ठीक है। तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा ऑफ के प्लस कप्पा ऑफ Cl माइनस प्लस कप्पा ऑफ वाटर।
दो, ये याद रखना, दो काप्पा इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट एडिटिव इन नेचर, ये एक्सेप्शन है, बट एडिटिव इन नेचर मतलब अगर तुमको केसीएल का स्पेसिफिक कंडक्टेंस जानना है तो पोटेशियम आयन का कप्पा और क्लोराइड आयन का कप्पा को तुमको समेशन करना होगा। वाटर इसमें कोई भी पार्ट नहीं लेता है, इसको जनरली जीरो पकड़ते हैं। ठीक है, देखो कोई डाउट है तो बोलो अप टू दिस पॉइंट। শশাঙ্ক কোনো ডাউট থাকলে বলো। সৌম্য, আচ্ছা, তাহলে this kappa, what is kappa? So this kappa, that is specific conductance, this kappa depends on two factors. One is the nature of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, और दूसरा कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब तुम बोलो अगर kappa is dependent on concentration, if kappa is dependent on the concentration, तो on dilution, on dilution कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो कप्पा भी डिक्रीज होगा। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, डाइल्यूशन होने से कप्पा क्यों गिर रहा है, बोल सकते हो कहीं, व्हाई इट इज डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग ऑफ द कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन जब तुम बढ़ा रहे हो तो कप्पा भी इंक्रीज कर रहा है, उसका रीजन क्या है। एनी आइडिया Ohinjit, any idea why on dilution kappa decreases? দেখ, বলো। Concentration of electrolyte না বলে এটা better to say concentration of number of ions because kappa depends on the ions concentration, मैं बोला था। ठीक है, मतलब सोचो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में पहले 1 मोलर KCl था, अब तुम उसमें और 1 लीटर पानी ऐड कर रहे हो, तो 1 मोल KCl तो नहीं चेंज हुआ, तो मतलब उसका जो आयन कंसंट्रेशन वो डाइल्यूट हो गया। सो इसलिए एज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो दैट इज व्हाई इट डिक्रीजेस। ठीक है, अब इस कप्पा का यूनिट क्या होगा, अभी देखा था यूनिट क्या हो सकता है, कप्पा इक्वल्स टू दो हम लोग देखा था 1/r इंटू L/A, तो मतलब 1/r यानी ओहम इनवर्स, L/A यानी सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये सीजीएस में होता है, और एसआई में क्या होता है, एसआई में ये होता है सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, तो मतलब अगर तुम एक ग्राफ प्लॉट करो, अगर सोचो तुम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ऐसे, जिसमें एक साइड में काप्पा है और दूसरा साइड में कंसंट्रेशन है, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब y इक्वल्स टू mx जैसे। तो ये होता है काप्पा। अब इस काप्पा के सिमिलर और दो चीजें, एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एक होता है मोलार कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी लैम्डा ई, मोलार कंडक्टेंस यानी लैम्डा एम, ये कैपिटल लैम्डा होता है।
ये जैसे स्मॉल लैम्डा होता है, ये कैपिटल, ठीक है, ऐसे उल्टा वी लिखकर दिखाता है. सो व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? স্মলটা হচ্ছে না, আমি এখনো পর্যন্ত হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ স্মল অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইন দ্য ইকুয়েশন সেটা আমি এখনো বলিনি. আমি জাস্ট মেনশন করে দিলাম এই যে উল্টো ভিটাকে বলে ক্যাপিটাল ল্যাম্ডা. ঠিক আছে, এই ইউটিলিটি আমি আসছি কোথায় এখানে দুটো একসাথে ইউজ হবে. ক্লিয়ার? আসছি. এমনি এখানে জাস্ট কিছু সাইনটাই জাস্ট বুঝিয়েছি আমি এখন পর্যন্ত. তো ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স কি বলছে? দ্য কন্ডাক্টেন্স generated by the ions generated by the ions when one equivalent of electrolyte is present in 1 cc volume of the electrolytic solution So what is mean by that? तो इसमें थोड़ा सा मेंशन कर दिया कितना इलेक्ट्रोलाइट है. मतलब लैम्डा ई इक्वल्स टू जो काप्पा था उसके साथ एक वी ऐड कर दिया. वी यानी वॉल्यूम. सो ये वी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1000/C नॉर्मलिटी. तो इसका मतलब कप्पा का यूनिट था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. अब ये कंसंट्रेशन जब आ गया, कंसंट्रेशन यानी कितना? कंसंट्रेशन यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब. तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला आएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा और ये ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा. तो ये हो गया लैम्डा ई का यूनिट. ठीक है. सिमिलरली मोलर कंडक्टेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो सिमिलर होगा द कंडक्टेंस. बुक में शायद बड़ा सा डिफिनेशन होगा, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं. द कंडक्टेंस जेनरेटेड by the ions when 1 mole of the electrolyte is present in 1 centimeter cube volume of the electrolytic solution. मतलब ये जो मैं ड्रॉ किया था अभी इसमें जस्ट जगह में इस जगह में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसका कंडक्टेंस को हम लोग कहेंगे मोलर कंडक्टेंस. और नीचे अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होकर ये होगा 1000 कप्पा/C मोलारिटी और इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. नहीं तो इसको तुम सीमेंस से भी लिख सकते हो, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब ये जो लैम्डा ई हुआ और लैम्डा एम हुआ इसके बिटवीन रिलेशन क्या है? सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई एंड लैम्डा एम? क्या होगा? सो लैम्डा ई वर्सेस लैम्डा ई, एम वर्सेस लैम्डा ई, that is 1000 kappa by C molarity by 1000 kappa by C normality. So ये दोनों कट गया तो क्या आ गया? C normality by C molarity. So हम लोग जानते हैं C normality यानी क्या होता है? n factor into molarity is equals to normality. तो ये आ गया that molar conductance is equals to n factor into equivalent conductance. ये हम लोगों को फॉर्मूला में लगेगा.
ठीक है। अभी तक मैं क्या क्या बोला, व्हाट इज मीन बाय specific conductance, what is mean by equivalent conductance, what is mean by molar conductance and the relation between the equivalent conductance and the molar conductance। बोलो इतना तक कोई डाउट है? अब इसका डिपेंडिंग फैक्टर्स, ये डिपेंडिंग फैक्टर से ज्यादा एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी, ये थोड़ा सा देख ये क्या है। पहले द क्वेश्चन साबाटी के लिए है, द फैक्टर्स affecting on electrolytic conductance, electrolytic conductance, what is that? कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इफेक्ट करता है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट ही द प्राइम पॉइंट बिहाइंड द कंडक्टेंस फैक्टर, इसको कभी कभी ट्रिपल आई से भी डिनोट करता है, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। तो ये क्या बोला गया है, इफ द इंटर आयोनिक इंटरेक्शन इज इंक्रीजेस, दैट मीन्स क्या होगा, आयंस के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, मतलब एट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अगर एट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मतलब उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट कम हो रहा है ना। ये पहला नंबर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सभी इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट है पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज मीन बाय दैट, कुछ कुछ सॉल्वेंट का तुम एक टर्म सुने हो इन योर लोअर क्लास, जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मतलब द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब उसका पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इफ हाई, that means polarity of the solvent increases, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा मतलब उसका पोलैरिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नेचर कितना कैसा है। इसका मतलब क्या है, नेचर का मतलब, नेचर का मतलब सोचो, सपोज इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। तो एसिड और बेस में दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 1 होगा। अगर ये वीक एसिड और वीक बेस होगा तो अल्फा इज लेस देन 1 होगा। पर सॉल्ट के लिए ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है। तो इसका इफेक्ट कैसे होगा, बोला गया है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होगा देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा आयोनाइज नहीं करेगा। हम लोग देख ही रहे हैं इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लेस देन 1 है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना आयंस है। इसका मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, जो लास्ट वाला पॉइंट में हम लोग बोला है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा ही होगा। अच्छा, फिफ्थ वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला गया है, हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयंस, हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयंस। व्हाट इज मीन बाय दैट, हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयंस। सपोज, तो यह बोला गया है, इफ if the hydrated size of ion increases, hydrated
size of ions increases, that means ionic mobility, मतलब उसका जो स्पीड, उसका जो मूवमेंट, that decreases, that means conductance decreases. इसका मतलब क्या है? सपोज तुमको बोला गया है लिथियम दिया है और सोडियम प्लस दिया है, बोल सकते हो लिथियम और सोडियम में किसका हाइड्रेटेड साइज आयन ज्यादा होगा? एनी आइडिया? लिथियम और सोडियम में किसका हाइड्रेटेड आयन का साइज ज्यादा होगा? बोलो, कोई बोलो। आर्यमान बोल सकते हो बाबू, किसका हाइड्रेटेड साइज ऑफ द आयन ज्यादा होगा लिथियम और सोडियम आयन के बीच में? देखो ये बहुत इजी है, लिथियम और सोडियम के बीच में सोडियम का हाइड्रेटेड आयन ज्यादा होगा। क्यों सर? देखो लिथियम एक छोटा साइज आयन है और सोडियम थोड़ा सा बड़ा साइज आयन है, तो लिथियम का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसके ऊपर वाटर का लेयर ज्यादा होगा, पर सोडियम का चार्ज डेंसिटी कम है क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। सो दैट मीन्स उसका वाटर का लेयर कम होगा, मतलब हाइड्रेटेड साइज भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से अगर बोला गया जाए आयोनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा, आयोनिक मोबिलिटी सोडियम का ही ज्यादा होगा, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी सोडियम ऐसे छोटा वाला हाइड्रेटेड साइज है, इसलिए ये मूव कर सकेगा। सो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स वाला है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर ऐसा बोला गया है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस increases, that means the distance between ions increases, that means interionic interaction decreases, that means conductance increases. देखा? And the last prime factor is very very important, that is dilution. ये थोड़ा सा ध्यान से सुनो। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन? देखो डाइल्यूशन का इन जनरल इफेक्ट ऐसा होता है, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द आयन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द आयन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन increases, that means the interionic interaction decreases, so that means conductance should increase। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा एक क्लीच है। क्या क्लीच है? मैं पहले ही बोला था जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा? सपोज डाइल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो रहा है, इफ इट इज डाइल्यूटेड फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ऑलरेडी अल्फा क्या होता है, 100% होता है। तो इसके लिए ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन increases, so that means interionic interaction decreases, so lambda m molar conductance increases। ठीक है, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इसका तो अल्फा लेस देन 1 होता है। सो इसका दो केस हो सकता है। क्या क्या?
एक हो सकता है इन जनरल if the weak electrolyte is treated as strong electrolyte. In general as strong electrolyte क्या होता है, मतलब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, उसका कंडक्टेंस बढ़ रहा है। और एक दूसरा केस होता है, वो बोल रहा है ऑन डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है, सो द नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ रहा है, सो दैट मीन्स लैम्डा लैम्डा एम बढ़ रहा है। ये समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, सपोज एसिटिक एसिड। अगर ये एसिटिक एसिड को तुम डाइल्यूट करोगे, पहले सोचो अगर तुम 100 ml वाटर डालकर इसको डाइल्यूट किया, तो पहले इसका 3 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुआ था। हो सकता है अब डाइल्यूशन में ये 10 से 15 हो गया आयन में डिसोशिएट, फिर से तुम उसको डाइल्यूट करोगे तो 15 से 20 आयंस डिसोशिएट होगा। मतलब ऑन डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है, तो लैम्डा एम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन में आ सकता है। द कंक्लूजन नंबर वन, ये सब याद रखना, ये ज्यादा से ज्यादा एसर्शन रीजन में पूछता है। एट सेम कंडीशन, ये याद रखना, एट सेम कंडीशन, कंफ्यूजन नहीं होगा। मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is greater than molar conductance of weak electrolyte in general, but for same amount of dilution तुम दोनों में ही 1000 ml वाटर डाल दिया, तो in that case the change of molar conductance will be of more for the weak electrolyte than for the strong electrolyte. कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। मैं थोड़ा सा तुमको हेल्प किया है अभी। बोला गया है इन जनरल केस तुम 0.1 मोलर HCl लिया, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया, तो उन दोनों का ही अगर कॉन्डक्टेंस तुम कैलकुलेट किया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा। अब तुम क्या किया, ये दोनों सॉल्यूशन में 100 ml वाटर डाल दिया, अब तुम उसका कंडक्टेंस चेक कर रहे हो, तो तब पता चल जाएगा उसका कंडक्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा इंक्रीज होगा देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट विल बी इट्स रीजन, सो इट्स रीजन इज क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी आयोनाइज्ड हो गया 100%, तो इसमें अगर तुम डाइल्यूशन भी करो तो उसका आयंस तो ज्यादा नहीं होगा, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसका आयंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका कंडक्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, शीशांक को बोलेगा लोग। हाँ, 100% डिसोसिएट, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%। सो ऑन डाइल्यूशन অলরেডি ও নর্মাল যখন ওয়াটারে দিয়েছিলে তো 100% H প্লাস Cl মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। বাট সোচো 0.1 মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ও নর্মাল কন্ডিশনে 100 মলিকিউলের মধ্যে 10 মলিকিউল ডিসোসিয়েট হয়েছিল। এবার এই দুটোর মধ্যে তুমি ওয়াটার অ্যাডিশন করলে, HCl এর ক্ষেত্রে অলরেডি 100 খানা মলিকিউলস ভেঙে গেছে, সেটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, আয়ন্স আর বাড়ছে না। বাট ফর দ্য strong weak electrolyte, for the acetic acid, as it is a weak electrolyte, so its degree of dissociation slowly increases
पहले 10 आयंस डिक्रीज हुआ, डिसोशिएट हुआ था, उसके बाद फिर से 10 आयंस डिसोशिएट हो रहा है। तो मतलब इसका जो इंक्रीज हो रहा है, হ্যাঁ সলিউশন ডাইলিউশন করার সাথে সাথে মলিকিউলস গুলো ভাঙছে আর उसका आयंस बढ़ रहा है। सो दैट इज वाई मैं बोला जो चेंज, द चेंज ऑफ मोलर कंडक्टेंस वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा है देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक इक्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं डी बाई हाकेल इक्वेशन। तो व्हाट इज डी बाई हाकेल इक्वेशन? तो ये क्या बोला गया है, जैसे लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इंफिनिटी minus b into root over c, where b is the Debye-Hückel constant and c is the concentration. c is the concentration। ठीक है, अब सोचो मैं इसको एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं। इसमें लैम्डा एम है और इस साइड में रूट ओवर ऑफ कंसेंट्रेशन है। तो फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसका ग्राफ कैसे आ रहा है, जस्ट सिंपल दिस, मतलब तुम जितना इसका डाइल्यूशन कर रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इन जनरल ये लैम्डा एम बढ़ रहा है। एंड ऑन द एक्सट्रीम डाइल्यूशन इसका एक पॉइंट रीच हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो साइन में दिया ये इंफिनिटी का साइन, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या है, अगर तुम इसके ऊपर भी डाइल्यूट करने की कोशिश करो तो उसका कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बट इट इज, ये किसके लिए है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। अब सोचो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देन द ग्राफ नेचर विल बी दिस, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे। ये किसका लिए है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट ये जो डीबाई-हैकेल इक्वेशन है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम हो गया, अगर कंडक्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना होता है प्रैक्टिकली तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो फ्रॉम द ग्राफ कैन कैलकुलेट फॉर इंडिविजुअल एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट हाउ कुड वी अचीव द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि ग्राफ से ही पता चल रहा है इट इज बिकम द पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका कोई रीचिंग पॉइंट तो नहीं है। तो हाउ कुड यू ड्रॉ द लिमिटिंग वैल्यू? मेरा बात समझ में आ रहा है? आर्यमान समझ रहे हो बहू? सो सोचो ये सब जो हम लोग बोला, ये जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किया, ये सब जो किया, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित होता है। सो व्हाट इज मीन बाय दिस प्रैक्टिकल? तो हम लोग ये सब प्रैक्टिकल, हम लोग जब ऑनर्स में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम लोग ये सब किए थे। मैं तुमको एक सेटअप दिखा रहा हूँ तो तुमको पता चलेगा प्रैक्टिकल कैसा होता है। मतलब कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हम लोग डिटरमिन करते हैं। जो मशीन हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टोमीटर।
ये तुम लोगों का सिलेबस में है, पर सब स्कूल में ये प्रैक्टिकल नहीं दिखाता है। ठीक है, देख रहे हो, ये जो मशीन देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टोमीटर। ये जो कंडक्टोमीटर है, कंडक्टोमीटर के अंदर पीछे से एक प्लग से करंट के जैसे अटैच होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रोड डीप रहता है प्लेटिनम का। ये इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हम लोग मेजर करते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें डिजिटली इसका वैल्यू यहाँ से आता है, यहाँ पर डिजिटली इसका वैल्यू शो करता है, कंडक्टेंस का वैल्यू। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो सर डाइल्यूशन कैसे करते हैं? तो डाइल्यूशन ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक स्टैंड लेकर यहाँ पर एक बुलेट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और बुलेट में पानी होता है, और ये पानी से यहाँ पर ड्रॉप वाइज हम लोग पानी डालते थे। तो डालने से क्या होता है, फॉर एवरी ईच ऑफ डाइल्यूशन, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो लैम्डा एम का वैल्यू ये बढ़ेगा। तो हम लोग पर 1 ml एडिशन एक एक करके डिजिटली डेटा हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी में ले लेते थे। अब उस जो डेटा हम लोग को मिलता था, उस डेटा से हम लोग कंसंट्रेशन निकाल देते थे, क्योंकि हम लोग को तो पता है इसका मोल कितना है इस इलेक्ट्रोलाइट का, और वॉल्यूम एडिशन करने से कितना डाइल्यूट होता है, और ईच डाइल्यूशन इसका मोलारिटी कितना हो रहा है। तो ऐसे हम लोग को हम लोग लगभग हम लोग 30 to 40 मिनट्स तक ये एडिशन करते करते इसका डेटा हम लोग को पता चलता था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग का ऐसे वैल्यू आता था, सपोज ऐसे यहाँ पर एक वैल्यू, ऐसे वैल्यू, ये सब वैल्यू को हम लोग ऐड करते थे, और उसको हम लोग अगर एक्स्ट्रापोलेट करते थे तो उसका लिमिटिंग वैल्यू मिल जाता था, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम लोग को ये पॉइंट कर्व यूज करते थे, तो इसका कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलता था। तो इसका वैल्यू जब जितना डाइल्यूशन करोगे इसका वैल्यू चेंज होता रहता था। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक टाइम के बाद उसका लैम्डा एम का जो इंक्रीज स्टॉप हो जाता है। तो मतलब स्टॉप हो जा रहा है, मतलब वो लिमिटिंग डाइल्यूशन में पहुंच गया। तो ये प्रैक्टिकल से हम लोग को क्या पता चल रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या है। तो प्रॉब्लम ये है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता नहीं चल रहा है। तो देन ए साइंटिस्ट नेम्ड कोलराश, वो एक लॉ प्रेडिक्ट किया, इसको हम लोग कहते हैं कोलराश लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उन्होंने क्या कहा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलराश लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो उन्होंने ऐसा किया, बोला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution, the equivalent conductance of any electrolyte is equals to the summation of the equivalent conductance, equivalent ionic conductance ऐसे कर सकते हो, of the ions of the electrolyte। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जांपल देते के समझा रहा हूँ। सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट है एक्स बी वाई, अगर ये डिसोशिएट करे तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये डिसोशिएट होता होकर एक्स ए वाई प्लस देगा और वाई बी एक्स माइनस देगा। मतलब इससे और इससे सेम इक्विवेलेंटी हम लोग को मिल रहा है। सो देन
इसका जो लैम्डा इक्विवेलेंट है एक्स बी वाई का, दैट इज इक्वल्स टू, अब अग्निवो थोड़ा सा देखो जो तुम पूछ रहे थे, सो इट इज द समेशन ऑफ द equivalent conductance of the cation and equivalent conductance of the anion at infinite dilution। यहाँ पर ऐसे एक इंफाइनिटी साइन दिया रखता है, नहीं तो जीरो देता है। देखो क्लियर हुआ? जस्ट मिनट। हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ। আমাকে ফোন নাম্বারটা তো পাঠাতে বলেছিলাম। পাঠিয়েছে? নয়ন দাস বলে লিখেছে? না আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। ওই কালকে রাত্রিবেলা হবে। এই রাত সরি সানডে রাত্রিবেলা ওই ডিসকাশনটা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি একটু ক্লাসে আছি, তোমাকে পরে ফোন করতে বলো, আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করতে বলো, ঠিক আছে? আমি একটু ক্লাসে আছি, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? অর্চক বুঝতে পারছো বাবু? তাহলে এবার সৌনক দেখো, এবার এবার এইটাকে আমি এটা রিয়েল ইলেকট্রোলাইটের জন্য কি করে আমরা এটাকে ফর্মুলাইজ করব। ধরো সাপোজ তোমাকে বলেছে ল্যামডা ইকুইভ্যালেন্ট অফ, সাপোজ ধরো সোডিয়াম সালফেট। তো যখন এর ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স হবে, সো দ্যাট ইজ দ্য equivalent conductance of Na plus ion and equivalent conductance of সালফেট আয়ন। অগ্নিভ বোঝা যাচ্ছে? অগ্নিভ দেখো জাস্ট Na প্লাস আর সালফেটের ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স আমি নিলাম, আমি কিন্তু কোনো রকম ইন ফ্যাক্টর নিইনি, ঠিক আছে? বাট if it is said in terms of molar conductance of sodium sulfate, then it will be 2 into lambda m of Na plus plus lambda m infinity of SO4 2 minus. So as there will be the two sodium atomicities 2, so this in factor is to be multiplied with the molar conductance of the ion, but for the equivalent conductance there will be a no change। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो और एक एग्जांपल देता हूं। अनदर एग्जांपल, equivalent conductance for aluminium sulfate। तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस होगा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 माइनस होगा। ये इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट। अगर इसको हम लोग मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में लिखते तब क्या होता? दो एल्यूमिनियम था, सो ये 2 लैम्डा एम इंफिनिटी of Al3 plus and 3 lambda m infinity of SO4 2 minus। देखो कोई डाउट है तो बोलो। কারোর কোনো ডাউট আছে তো বলো। সৌম্য
বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, তা যদি বোঝা যায় তাহলে তাহলে আমাকে একটু বলো, যে তোমাকে ধরো এরকম একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে, এটা কয়েক বছর আগে এই নিট বা এইমস এ জিজ্ঞেস করেছিল। সেটা এরকম, হুইচ অফ দ্য ফলোইং এক্সপ্রেশন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং এক্সপ্রেশন, এগুলো কিন্তু পরীক্ষা হলে কনফিউশনে ভুল হয়ে যায়। ফলোইং এক্সপ্রেশন is or are true for অ্যালুমিনিয়াম সালফেট। বলে চারটে অপশন দিয়েছিল। অপশন নাম্বার ওয়ান, টু ল্যামডা ই অফ এল থ্রি প্লাস প্লাস থ্রি ল্যামডা ই অফ এসও ফোর টু মাইনাস। সেকেন্ড, আচ্ছা, ট্রু ফর ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স অফ, হ্যাঁ এটা বলতে ভুলে গেলাম, ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স অফ অ্যালুমিনিয়াম সালফেট। ঠিক আছে, কোশ্চেনটা আমি মন থেকে বলছি তো, মানে ওই জন্য একটু আগে পরে হয়ে যাচ্ছে রিকোয়েস্ট। তো একটা ছিল এইটা। সেকেন্ড ছিল টু, না টু ছিল না, ছিল এটা তো টু হলো। একটা ছিল হচ্ছে ল্যামডা ই এল থ্রি প্লাস অ্যান্ড ল্যামডা ই এসও ফোর টু মাইনাস। থার্ড এক্সপ্রেশন ছিল ল্যামডা এম এল থ্রি প্লাস ল্যামডা এম এসও ফোর টু মাইনাস। অ্যান্ড ফোর্থ অপশন ছিল ল্যামডা এম infinity L3 plus by 3 lambda m infinity of SO4 2 minus by 2. তো বলো, which of the following expression is or are true for the equivalent conductance of aluminum sulfate? বলো, তুই তো বলো। ऑप्शन टू इज करेक्ट। सिर्फ ऑप्शन टू ही होगा। उसको इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर। करेक्ट, ठीक है, पूरा ठीक है। पर देखो, और एक ऑप्शन होगा, दूसरा और एक ऑप्शन हो सकता है। कुछ देर पहले ही मैं एक एक्सप्रेशन तुम लोग को बोला था, उसमें ऐसा बोला था जैसे कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब कोई भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को तुम मोलर कंडक्टेंस को टर्म में लिख सकते हो, डिवाइड बाय इस वैलेंसी फैक्टर। तो एल्युमिनियम थ्री प्लस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा अगर इसको मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय थ्री लिख दो? सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस बाई इसका वैलेंसी फैक्टर टू लिख दो। तो ये दोनों ही तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही है। तो ऑप्शन फोर का एक्सप्रेशन भी करेक्ट होगा ना। देखो, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। মোলার কন্ডাক্টেন্স ইজ ইকুয়ালস টু ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর ইনটু ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স। আমি একটু আগেই বলেছিলাম দেখো। सो এখানে ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স টার্মসে আনতে বলেছে। তো মোলার কন্ডাক্টেন্স को तो इक्विवेलेंट টার্মসে आना जाए, जस्ट डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। অ্যালুমিনিয়াম ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর 3, সালফেটের ভ্যালেন্সি ফ্যাক্টর 2, তাই আসবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি আরেকটা টাইপ নিউমেরিক্যাল করছি, এটাও কিন্তু একটু আইএসসি টাইপ। এগুলো যেইতে খুব কম দেয়।
নিচে দিতে পারে। ঠিক আছে? একটু সহজ টাইপের কিরকম কোয়েশ্চেন দেয়, যেমন ধরো অনেক সময় আমি what I have found that from the Kohlrausch law we cannot even determine the equivalent conductance of the infinite dilution for the weak electrolyte. So how to find out the limiting molar conductance or limiting equivalent conductance for the weak electrolyte, क्योंकि उसका ग्राफ तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रहा है, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो कोल्लाश ने बोला, जो मैं कोल्लाश लॉ लॉ से हम लोग ये पता चलता है, with the help of strong electrolyte we can determine the value of weak electrolyte at infinite dilution. So कैसे? Suppose ऐसा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लैम्डा एम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर एसिटिक एसिड कितना होगा? देखो इसका तो ये तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू कोल्लाश लॉ हम लोग ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुमको तीन गिवन वैल्यू दिया गया है, जैसे एक सी एस सी सी डबल ओ एन ए का, इससे तुमको पता चलेगा सी एस सी सी डबल ओ माइनस प्लस एन ए प्लस। दूसरा एक दिया गया है एन ए सी एल का, इससे तुमको पता चलेगा एन ए प्लस सी एल माइनस। और तीसरा एक दिया गया है एच सी एल का, मतलब एच प्लस और सी एल माइनस। अब तुमको ये तीनों गिवन दिया गया है, सपोज इसका वैल्यू दिया गया है ए, इसका वैल्यू बी, इसका वैल्यू सी। अब तुम देखो, जस्ट तुम इक्वेशन सॉल्व करो, तुम्हारा पास जो एसिटिक एसिड अननोन है उसको लाने के लिए तुमको तुम्हारा कंट्रीब्यूटिंग आयन ये दोनों चाहिए। तो ये दोनों आयन हम लोग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, एक देखो यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ ना, इफ ए इज एडेड विथ सी माइनस बी, देन देखो बाकी सब यूज्ड आयन सब कट रहा है। अगर ए से सी को ऐड करके बी को माइनस कर दो, जो एन ए प्लस और सी एल माइनस है वो कट जा रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू ए प्लस सी माइनस बी होगा आंसर। ठीक है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजिंग कोल्राश लॉ वी कैन डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सब डाटा है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेटा को यूज करके हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू निकाल रहे हैं यूजिंग कोल्राश लॉ। क्लियर सबको? अब मैं सेकेंड लॉ में चला जा रहा हूं। अब सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कोल्राश का? सेकेंड लॉ ये बोल रहा है, बाय यूजिंग, मतलब इस ये थोड़ा सा लॉ नहीं है, ये थोड़ा सिग्निफिकेंट जैसा है। बाय यूजिंग द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, the degree of dissociation can be calculated, can be calculated। कैसे? मतलब given molar conductivity by the molar conductivity at infinite dilution, उससे हम लोग ये अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे सर? एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसका रिगार्डिंग, तुम लोग को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा बोला गया है that molar conductance of m by 32 molar uh, acetic acid is 8 Siemens centimeter square mole inverse, and molar conductance of acetate ion and H plus ion are
44 and 256 Siemens centimeter square mole inverse. Find alpha and डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ये दोनों पूछा गया है। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं,